था कि जो भी मैं कहूँ उसको एज इट इज एक्सेप्ट ना करो, आप क्वेश्चन करो. The same thing was restored by Narayan Guruji in Kerala. That is why the Kerala's people are right now in that position to show that their human resource and the intellectual writing is at the top of India. Sir, ये उनकी कोशिश है, इस वजह से आज केरला के लोग इतने अच्छी ऊंचाई पर हैं. धन्यवाद सर, आपने अपनी बात रखा. अब मैं अपने माननीय ईश्वरिया सर और जगदीश सर की तरफ चाहूंगा जाने के लिए कि वो लोग अपना एक्सपर्ट कमेंट दें, और अगर यदि इजाजत होगा तो हम लोग एक दो लोगों से आज क्वेश्चन भी ले सकते हैं, तो जैसा हमारे अध्यक्ष जी आदेश करें. जी सर. Today subject is very mind-boggling one, because Professor Mohan Gopal says don't have any blind faith or blind belief, but you respect the Sikhism, Jainism, Muslimism, or Christianism, or whatever ism is there, but don't have the blind faith. Only to the extent possible you realize, you understand, you believe, and this exists. And he has created a very space in the mind of each and every one of us. Then how to have the thinking, questioning process, then realize it, then believe it. Because everybody is individual, unique, separate, and their intellect is differs. But have respect. Don't have any conflict with anybody. But ultimately, you come to the correct conclusion, and you ponder it, and you think over it, and you and deeply think. By that, what happens? The reality comes. जो मंथन करने से उसमें जो ड्रीम आता है उसमें वो आ जाता है. Therefore, it's not a plan. Therefore, this today is the main message of what Mohan Gopal says. This as the question, Dr. This Singh also he has asked a question that actually oligarchism has come, the Kulehin rule has come because of the upper class people. The Brahmins have they have denied the right to get educated, denied to right to fulfill their devotion, their bhakti, and their desire, and therefore they have become the dominant cause insofar as in scheming and planning for continuing their hegemony, their rule is concerned. Therefore, now it is time for us. We also think the similar way as these the castes are relentlessly holding over the power even after the Constitution of India, and without any this kind of the revolutionary thinking, agitation or something, and silently and very coolly, and they are continuing with their rule and depriving our rights. Therefore, now this the relevancy of today's struggle for the social revolution is this kind of the philosophy we have to develop and we have to think it. And but I will discuss many things personally with Professor Mohan Gopal separately. Then now Chairman Sahib is there. Chairman will enlighten us. Thank you, थैंक यू सर आपके इस वक्तव्य के लिए. और मैं आग्रह करूंगा अपने चेयरमैन सर को, जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव सर को, कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें. और धन्यवाद के लिए हमारे बीच में आशा चंद्रा जी हैं. धन्यवाद लेकर आए जी. साथियों, केरला के महान संत स्वामी नारायण गुरु से संबंधित जितना भी हमारे एमिनेंट जूरिस्ट श्री मोहन गोपाल जी ने बताया, वो एक पूरा उनके कार्य का, उनके जीवन का एक निचोड़ है. नारायण गुरु स्वामी
जिन परिस्थितियों में पैदा हुए और जिन परिस्थितियों में पले बढ़े और जो परिस्थितियां उस समय समाज में प्रवेल कर रही थी, वो सभी पिछड़ी जातियों के प्रति अत्याचार, ब्राह्मणवाद, जो मनुवाद से प्रभावित रहा है, उन सब से प्रभावित होकर एकांतवास में उन्होंने चिंतन, जंगलों में, पहाड़ी कंदराओं में रहकर उन्होंने चिंतन किया कि किस प्रकार से हम अपने समाज को, जो ब्राह्मणिज्म से त्रस्त है, अंधविश्वास से ग्रस्त है, इस प्रकार हम उस अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। और उन्होंने आध्यात्म और यथार्थ, इन दोनों के संगम से अपने दर्शन को स्थापित किया। उनका यह दर्शन लोगों के समझ में आया और उनके पथ प्रदर्शन में लोगों ने काम किया। इसलिए आज नारायण गुरु द्वारा स्थापित जितने भी आध्यात्म और यथार्थ से संबंधित बातें हैं, वो आज के युग में भी बहुत ही क्रियान्वयन योग्य है। तत्समय आध्यात्म के माध्यम से उन्होंने यद्यपि मूर्ति पूजा का विरोध किया, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने भगवान शंकर का मंदिर बनवाया। वह इसलिए कि किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए उसको धीरे धीरे निपटाना चाहिए। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक रूप से जितने भी मंदिर बनवाए, शंकर जी के मंदिर के बाद उन्होंने जो मंदिर बनवाए, इनमें किसी में मूर्ति पूजा नहीं किया। दीपक, एक मंदिर में उन्होंने दीपक रखा, दीपक की पूजा किया। एक मंदिर में उन्होंने सत्य, प्रेम, दया, धर्म इस संदेश को लिखा। एक मंदिर में उन्होंने जो तो इस प्रकार से उन्होंने किसी भी चीज को समझाने के लिए, आम जन को समझाने के लिए उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किए बगैर उनकी भावनाओं को धीरे धीरे परिवर्तित करने का प्रयास किया। और ये उनका बहुत बड़ा प्रयास था कि जिस तरह से अंधविश्वास में पिछड़ी जातियों को ब्राह्मणवाद ने बिल्कुल घेर लिया था, उस अंधविश्वास को दूर करने में वो सफल रहे। मंदिर में दर्पण रखना स्वयं इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि भाई अपने आप को समझो, भगवान की आस्था है, मंदिर है, लेकिन इसमें भी रहते हुए, आते हुए, पूजा करते हुए स्वयं को समझो। मतलब अंधविश्वास को दूर करने का उनका बहुत बड़ा दर्शन रहा है, जो कि आध्यात्म से यथार्थ को जोड़ते हुए उनकी सारी शिक्षाएं रही हैं। और मैं समझता हूं केरल आज जितना ब्राह्मणवाद से दूर है, शायद ही कोई प्रांत इतना दूर रहा हो। और ये स्वामी नारायण गुरु की बहुत बड़ी देन है केरल के लिए। हमें उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए और जो ब्राह्मणवाद में घिरे हुए अंधविश्वास वर्तमान में भी हैं, उनका सीधा विरोध न करके यदि धीरे धीरे उनको एक एक पॉइंट पर संगठन के साथ उनको समझाकर एक वैज्ञानिक
सोच का डेवलपमेंट किया जाए, जो वैज्ञानिक सोच यथार्थ को लेकर नारायण गुरु ने की है, तो मैं समझता हूं आज के युग में भी वो उनकी शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तत्कालीन समय में थी। इन्हीं इसी संबोधन के साथ मैं और ज्यादा न कहते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे स्वामी संत, उनके दर्शन को हमें पढ़ना चाहिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नारायण गुरु साहब के लिए लिखा है कि मैंने विश्व के विभिन्न स्थानों की यात्रा की है। इन यात्रा के दौरान मुझे अनेक संतों और विद्वानों के दर्शन करने का अवसर मिला है, लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मुझे अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो केरल के स्वामी श्री नारायण गुरु से आध्यात्मिक रूप से अधिक महान हो अथवा आध्यात्मिक उपलब्धियों में उनके समकक्ष भी हो। यह इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जो उनका दर्शन था वह केवल भगवान की मान्यता और सब कुछ उनके ऊपर निर्भर करने तक सीमित नहीं था। उनका आध्यात्मिक दर्शन यथार्थ से जुड़ा हुआ था और यथार्थ से जुड़ा होने के साथ ही उन्होंने ये क्रांति केरल में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जगाई है कि अंधविश्वास को आध्यात्म के साथ खत्म करके और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को समाज के कल्याण के रूप में उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया जाए।